عید کی خوشیاں قریب آتے ہی شہریوں نے خریداری کے لیے بازاروں کا رخ کر لیا ہے۔ والدین اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے، جوتے اور دیگر ضروری اشیاء خریدنے میں مصروف ہیں تاکہ عید کی خوشیوں کو دوبالا کیا جا سکے۔ تاہم دوسری جانب مہنگائی نے عوام کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ اشیاء ضرورت کی قیمتوں میں اضافے کے باعث شہری شدید پریشانی کا شکار ہیں اور کئی افراد محدود بجٹ کے باعث خریداری دوری چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف وزیر آباد جمشید شہزاد کی اس رپورٹ میں۔ عید قریب آتے ہی وزیر آباد کی مارکیٹوں اور شاپنگ سینٹروں میں عید کی خریداری کرنے والوں کا رش تو بڑھ گیا ہے۔ ریڈی میڈ کپڑے ہوں یا جوتے، چوڑیاں ہوں یا میک اپ، خریدنا تو لازمی ہے، لیکن ان چیزوں کے ریٹ سن کر کھلے ہوئے چہرے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اپنے کپڑے تو لینا بہت دور کی بات ہے، بچوں کے کپڑے بھی افورڈ نہیں کر سکتے۔ جو پچھلے سال 1000 کا سوٹ تھا وہ اب اس وقت 2000 کا سوٹ۔ بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، دور ہی ایسا چل رہا ہے، کیا کریں، مجبوری کے تحت عید کر رہے ہیں۔ مہنگائی تو ہے بہت زیادہ، خرید لیے سوٹ وہ تو لازمی، ظاہر ہے عید ہے تو خریدنا تو ہے ہی۔ پھر ابھی میچنگ وغیرہ نہیں لی، ابھی صرف سوٹ ہی لیے۔ جی حکومت سے یہی کہ مہنگائی کم کریں اور لڑنا بند کریں ایک دوسرے سے۔ رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کے لیے ایک تحفہ دیا ہے، اور اس عید الفطر پر تقریباً ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو نئے سوٹ، نئے جوتے جو ہے وہ دلائے تاکہ وہ اچھے سے جو ہے نا وہ نماز ادا کر سکیں اور اپنی جو عید جو ہے منا سکیں۔ مہنگائی نے عام غریب آدمی کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ جو پیسوں سے ایک خاندان کی شاپنگ کی جاتی تھی، اب ایک فرد کی وہ چیزیں خرید کر بھی بمشکل جو گزارا ہو رہا ہے۔ ہماری حکومت وقت سے اپیل ہے کہ خدارا غریب آدمی کو اگر زندہ رکھنا ہے تو مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے۔ عید آ گئی اور بہت قریب آ گئی ہے، ہم یہاں پہ شاپنگ کرنے آئے ہیں اور ریڈی میڈ سوٹ بائی کرنے آئے ہیں، لیکن جہاں پر پچھلے سال کی نسبت اس سال بہت زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے۔ جہاں پر ہم نے 3 سوٹ لینے تھے وہاں پر ہم نے آج 1 لینا ہے۔ عید جیسے پرمسرت موقع پر دکاندار بھی مہنگائی کا ہی شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ گاہک دکان پر آتا تو ضرور ہے، لیکن ریٹ پوچھ کر پریشان لوٹ جاتا ہے۔ پہلے جو ہے ہمارے پاس کسٹمر 5-5 6-6 سوٹ لے کے جاتا تھا، آج کل وہ 2 سے 3 لے رہا ہے کیونکہ مہنگائی کی شرح بڑھ گئی ہے۔ جب سے حکومت آئی ہے اس کے سامنے آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے تو بیڑا گرک کر کے رکھ دیا ہے نا ہمارے ملک کا، مکمل طور پہ جو ہے سینا کاروبار وہ ٹھپ ہو چکے ہیں، اور عید کے دنوں میں آج کل کوئی رش نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آرام سے بیٹھے ہیں۔ جہاں ہم جو ہے وہ لاکھوں روپے کماتے تھے وہاں ہزاروں میں باتیں آ رہی ہیں۔ اگے سوٹ لے لیے ہن 2-3 ہوں تو ایک لینا بھی مشکل ہو گیا بھاجی، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے ہوں تو کرائے کٹنے مشکل نے۔ حکومت سے شہری ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ عید جیسے میٹھے تہوار پر حکومت کی جانب سے کوئی تو خصوصی ریلیف پیکیج دینا چاہیے تھا تاکہ غریب عوام بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے۔ کیمرامین نوید علی مغل کے ساتھ جمشید شہزاد، آن نیوز، وزیر آباد۔ تھانہ جوہر ٹاؤن پولیس نے خواتین چور گینگ اور ان کا سہولت کار گرفتار کر لیا۔ ایس پی صدر رانا حسین طاہر کی سربراہی میں ایس ایچ او تھانہ جوہر ٹاؤن اور سب انسپکٹر عمران تاڑر نے کارروائی کرتے ہوئے خواتین چور گینگ کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندہ شیخ ارمغان خلیل۔ ہاں جی بالکل، ایس ایچ او بھگوان پورہ رضوان خان کی پولیس ٹیم کے ہمراہ بڑی کارروائی، 4 رکنی متحرک موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان میں علی حیدر، عبد الرحمان، تنظیم اور راشد شامل۔ ملزمان سے 13 چوری شدہ موٹر سائیکلیں، کھلے اسپیئر پارٹس، ٹینکی ٹاپے، سلنسرز، بیٹریاں اور غیر قانونی اسلحہ برآمد۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں ملزمان کو چوری کی موٹر سائیکل لے جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ملزمان موٹر سائیکلیں ہوٹلوں کے باہر لاک کے بغیر کھڑی موٹر سائیکلیں چوری کرتے اور پارٹس کھول کر فروخت کرتے تھے۔ ایس ایچ او رضوان خان ملزمان کو سی سی ٹی وی فوٹیج اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا گیا۔ برآمد موٹر سائیکلیں پولیس کو مختلف مقدمات میں مطلوب تھیں۔ ملزمان گرفتاری کے بعد مزید تحقیق کے لیے اے وی ایل ایس کے حوالے کر دیے گئے۔ مقدمہ درج ایس پی کینٹ کی ایس ایچ او بھگوان پورہ رضوان خان اور پولیس ٹیم کو شاباش دی اور کہا موٹر سائیکل چوروں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے۔ جی خبر شامل کرتے ہیں نشیر فروز سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر سید اسد شاہ کے مطابق نشیر فروز میونسپل کمیٹی کے چیئرمین کاشف مصطفیٰ میمن کے کرپشن اور شہر میں صفائی کا نظام بہتر نہ ہونے کے خلاف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے احتجاجی مظاہرہ کیا، جہاں پر مظاہرین نے میونسپل کے خلاف سخت نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا چیئرمین کاشف مصطفیٰ میمن نے شہر کو صاف ستھرا
के बजाय बजट को साफ कर दिया और करप्शन का बेताज बादशाह बन गया। चेयरमैन ने बजट का सफाया करने के बाद मुलाजमान को वीजे पर छोड़ दिया, जिनसे तनख्वाह में से हर माह फी मुलाजम 10,000 रुपये रिश्वत ले रहा है। मुलाजम वीजा पर होने के बायस शहर गंदगी की वजह से तबाह बर्बाद हो। एंटी करप्शन शरीफ रोज भी हिस्सा पति लेकर खामोश तमाशाई बने हुए हैं, जबकि शहर में तरक्याती काम भी नहीं हो रहे। रहनुमाओं ने आला हुकाम से मुतालबा किया है फौरी तौर पर करप्शन में मुलव्वस चेयरमैन डॉक्टर काशिफ मेमन के खिलाफ करप्शन के मुकदमा दर्ज करके करप्शन गिरफ्तार किया जाए। फर्रुखाबाद पैसे ना देने पर बेटे ने ज़ैफुल उमर मां को छुरियां मार दी। वाक़या बैंक के बाहर उस वक्त पेश आया जब मां रकम लेकर बैंक से बाहर निकल रही थी। ज़ैफुल उमर खातून को रेस्क्यू की मदद से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अपनी मां को मारने वाले लड़के का नाम शेख अली रजा वल्द शेख नासर है, जो कि आइस के नशे में मुब्तला है। मुकामी लोगों ने मां को छुरियां मारने वाले लड़के की दुर्गत बनाने के बाद थाना सिटी पुलिस के हवाले कर दिया। जिला बार खान रुकनी और गिरदनवाह में खरीदारी का रश। शहरी महंगाई से परेशान। ईद उल फितर के करीब आते ही बार खान रुकनी और इसके गिरदनवाह में ईद की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। मकामी मार्केटों और बाजारों में खरीदारों का रश देखने में आ रहा है, जहां शहरी ईद की खुशियों के लिए कपड़े, जूते और दीगर ज़रूरी सामान की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। बार खान रुकनी की मरकजी मार्केट और बाजारों में दिन भर गहमा गहमी रही। दुकानों पर मर्द, ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में खरीदारी करते दिखाई दिए। कोई ईद के लिए नए कपड़े खरीद रहा है तो कोई जूते और दीगर अशिया की तलाश में मुख्तलिफ दुकानों का रुख कर रहे हैं। खरीदारों का कहना है कि ईद की खुशियाँ मनाने के लिए खरीदारी तो ज़रूरी है, ताहम इस साल महंगाई में गैर मामूली इजाफे ने बजट को मुतासर किया है। शहरियों ने शिकायत की है कि कपड़ों, जूतों और दीगर अशिया की कीमतें गुज़िश्ता साल के मुकाबले में काफ़ी बढ़ चुकी हैं। दुकानदारों के मुताबिक ईद के करीब आते ही खरीदारी में नुमाया इजाफा हो जाता है और लोग आखिरी दिनों में ज़्यादा तादाद में बाजारों का रुख करते हैं। शहरियों ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि ईद की खुशियाँ सादगी के साथ मनाते हुए वो प्यारों के साथ इस त्यौहार को भरपूर अंदाज में मनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, इस दफ़ा जो महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। पहली दफ़ा से रश जो था पिछले साल पे, इस दफ़ा जो रश है बहुत कम है या काफ़ी कम है, या मजदूरों का जो महंगाई है हद से बढ़ चुकी है। बहुत ज़्यादा महंगाई है, या लोगों का रोक नहीं हो रहा है बाज़ारों पे। महंगाई ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। गरीब बंदा जावे किधर है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुका है। नारंग मंडी से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नसीर मलिक की तफसीलात के मुताबिक मलिक बरादरान की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक में अल्लाह के मेहमानों का दस्तरख्वान के नाम से फ्री इफ्तारी डिनर का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में आज इफ्तार डिनर से कबल बज़रिया कुरानदाजी 2 खुशनसीब अफराद को मुकम्मल उम्रा पैकेज देने का ऐलान किया गया, जिसमें मोहम्मद सदीक और शहबाज फौजी उम्रा पैकेज के लिए मुस्तहिक़ करार पाए। इनके नामों का ऐलान होते ही हाल खुशी और मसरत से गूंज उठा और शुक्र इन्हें मुबारकबाद पेश की। सीनियर सहाफ़ी और ग्रुप लीडर प्रेस क्लब नारंग मरहूम मलिक बशीर अहमद और मलिक बरादरान की जानिब से अल्लाह के मेहमानों की खिदमत का यह सिलसिला हर साल रमज़ान मुबारक में जारी रखा जाता है। इस फलाही इक़दाम के तहत पूरा रमज़ान मुस्तहिक़ और रोज़ादारों के लिए फ्री इफ्तार डिनर का एहतमाम किया जाता है। इस मौके पर कुरानदाजी के जरिए 2 अफराद को मुकम्मल उम्रा पैकेज दिया गया। मुंतखब होने वाले खुशनसीबों में मोहम्मद सदीक और शहबाज फौजी को मलिक बरादरान की जानिब से फूलों के हार पहनाए गए और हाज़रीन ने इन्हें दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी। वाज़ेह रहे गुज़िश्ता साल भी रमज़ान मुबारक के दौरान इसी तरह कुरानदाजी के जरिए 2 खुशनसीब अफराद को उम्रा की सआदत हासिल करने के लिए भेजा गया था। तकरीब में बड़ी तादाद में मोअज़्ज़िज़ीन और दोस्त अहबाब ने शिरकत की। आखिर में मरहूम मलिक बशीर अहमद के साले सवाब के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। खबर शामिल करते हैं सिटी रिपोर्टर साहिवाल शेख नईम से। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन डॉक्टर आसफ तुफैल ने शहर में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ क्रैकडाउन में सुस्त रवि पर नाराज़गी का इजहार करते हुए गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत की। अपने दफ्तर में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की प्लानिंग ब्रांच की कारकर्दगी के जायजा इजलास में उन्होंने कहा, गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक जामिया और मरबूत हिकमत अमली तरतीब दी जाए, जिसके तहत बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ यकीनी बनाई जाएँ ताकि शहरियों को फ्रॉड और माली नुकसान से बचा जा सके। उन्होंने शहर में तजावुज़ात के खात्मे के लिए भी सख्त इक़दामात की हिदायत देते हुए कहा, शहरियों की सहूलत और ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के लिए फौरी और मौसर ऑपरेशन किया जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि शहर की खूबसूरती, नज़्म व ज़ब्त और शहरी सहूलियात की बेहतरी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, जिसके लिए तमाम इदारे अपनी जिम्मेदारियाँ भरपूर अंदाज में अदा करें। लाहौर में चीन के नए तैनात होने वाले कौंसलर जनरल सन यान ने स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से असम्बली चैम्बर में मुलाकात की।
स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने चीन के नई तैनात होने वाले कौंसल जनरल को पंजाब असम्बली आमद पर खुशामदीद कहा और उनको ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग़ समेत CPEC के मंसूबों और नए शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि पाक चीन दोस्ती, एतमाद और मोहब्बत पर मबनी लाजवाब रिश्ता है। पार्लिमानी वफूद के तबादलों से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। चीन पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली में एक सच्चे और मुखलिस दोस्त का किरदार अदा कर रहा है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाक चीन माशी ताल्लुकात की नई जहतों पर काम शुरू हो चुका है। वज़ीर आला मरहम नवाज़ की क़यादत में सूबा पंजाब फिर से तरक्की की राह पर गामज़न है। CPEC के मंसूबे पाकिस्तान की पायदार तरक्की के सफ़र में अहमियत रखते हैं, जबकि तालीमी शोबे में पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन काबिल तहसीन है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान अवामी राब्ते पर अवामी सतह पर राब्ते मजबूत हैं। CPEC दोनों मुल्कों की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। CPEC की वजह से पाकिस्तान को न सिर्फ खिते में बल्कि आलमी सतह पर भी मजीद अहम हैसियत हासिल हो चुकी है। चीनी कौंसल जनरल सन जियान ने स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर चीनी कौंसल जनरल सन जियान का कहना था कि पाक चीन ताल्लुकात को नई जहत देंगे, मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद बढ़ाया जाएगा, तजारती और तालीमी रवाबत के फ़रोग़ के लिए इक़दाम करेंगे। मुलाकात में मेंबर असम्बली राना अरशद, सेक्रेटरी जनरल पंजाब असम्बली चौधरी आमिर हबीब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमाद हुसैन भली और डायरेक्टर मीडिया राव माजिद अली भी मौजूद थे। सक्खर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सदीर हुसैन की खबर के मुताबिक सक्खर सदारती अवार्ड याफ्ता अमर सहाफ़ी अजय लालवानी की 5वीं बरसी तकरीब, सैकड़ों की तादाद में सहाफ़ियों ने कातलों को सज़ाएं देने का मुतालबा। सालेपट शहर में शानदार रैली, शहीद सहाफ़ी की समाधि पर फूल निछावर दिए जलाए गए। इस सिलसिले में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ और सालेपट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से अमर सहाफ़ी अजय लालवानी की 5वीं बरसी की तकरीब मैन चौराहे पर मुनक़्क़द की गई, जिसमें पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मरकज़ी रहनुमा इमदाद फलपोट और सक्खर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर परवेज़ खान, सेक्रेटरी दीन मोहम्मद, नायब सदर सैयद कामरान अली, सक्खर नेशनल प्रेस क्लब के सदर अब्दुल रऊफ अब्बासी, जनरल सेक्रेटरी रशीद रजा, मेहताब अंसारी, हबीबुल्लाह बलकानी, अजय लालवानी के वालिद दलीप कुमार, बेटे हमेश अजय लालवानी, भाई रोहित कुमार, अखान कुमार समेत सालेपट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर अली गोहर शनबानी, हबीबुल्लाह, वज़ीर शनबानी, अजीज़ मक्सी, पनुआकल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट से अल्ताफ़ कलोर, नदीम बोजदार, कराटो यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट से अब्दुल मजीद मेहर, हजरत गुल पठान, मुमताज़ मेहर, गुलाम अली मेहर, रोहरी जूनियर, जान मोहम्मद भट्टू, खान मोहम्मद कबूल के अलावा आशिक हैदरी, राजा रुस्तम अंडहर, फ़कीर आदा लबड़ू, मुजफ्फर मंगी, राहब मगरियो, मोहम्मद मलूक बलोच, सच्चल सोलंगी, सदीर हुसैन, सरफराज चन्ना, शबीर मेमन, उमैर मुगर, रहमतुल्लाह बड़रू, मुनीर मेहर, गुलाम हुसैन भमरू समेत सैकड़ों की तादाद में सहाफ़ियों ने शिरकत की। बरसी तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मरकज़ी रहनुमा इमदाद फलपोट ने कहा कि अमर सहाफ़ी अजय लालवानी के कातिल एक एक करके मुल्क से फरार हो रहे हैं। अदालत में सुनवाई सुस्त रवि का शिकार है वो कातिल जमील शाह रजा, जिन्होंने खुद वीडियो बयान और पुलिस के सामने एतराफ़ जुर्म किया। इनका मुल्क से फरार होना कानून का खुलम खुला खिलवाड़ के बराबर है। हैदराबाद से ब्यूरो चीफ सैयद शाहरुख की रिपोर्ट के मुताबिक समंदरी से जहां बैतुल हुक्मा फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम इस बाबरकत महीने में समंदरी के नौजवानों की जानब से तीसरी बड़ी पुरवकार इफ्तारी का अहतमाम किया गया। इफ्तारी का अहतमाम रिक्शा स्टैंड समंदरी में किया गया, जिनमें सैकड़ों अफराद के लिए इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया। इस मौके पर रोज़ेदारों के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए और आने वाले मेहमानों के लिए पुरतकल्लफ खाने का अहतमाम किया गया। समंदरी के जवानों का ये इक़दाम माशरे में हम आहंगी, भाईचारे और खिदमत खलक की खूबसूरत मिसाल है। इस दौर में नौजवानों के इस जज्बे को शहरियों ने बहुत सराहा। शहरियों का कहना था कि अगर नौजवान नस्ल ऐसी अच्छी सरगर्मियाँ जारी रखेंगे तो माशरे में बाकी नौजवानों को भी एक अच्छा मैसेज मिलेगा। मुंतज़मीन के मुताबिक फाउंडेशन आइंदा भी ऐसे फलाही इक़दाम जारी रखेगी और यह फाउंडेशन अरसा दराज से ऐसे फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। आवाम को चाहिए कि हमारी फाउंडेशन के साथ ताउन करें ताकि आइंदा भी ऐसी सरगर्मियाँ जारी रख सकें। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।